राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy वेलकम यू ऑल। हमारा ये जो मॉड्यूल है इट्स अ स्पेशल मॉड्यूल ऑन करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स और हमारी तैयारी चल रही है 68 बीपीएससी पीटी के लिए। 68 बीपीएससी पीटी में करंट इवेंट्स दो प्रकार का होगा, या होता है या होता रहेगा। एक है नेशनल और दूसरा है बिहार स्पेशल। नेशनल पार्ट पे हम लोग जो है इस मॉड्यूल में हम लोग उस पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि पिछले एक साल का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी करंट इवेंट्स है, जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हमारा कंसंट्रेशन का बिंदु रहेगा। अब सवाल उठता है कि हमारा सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। तो हम लोग पिछले एक साल का हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आपका आया हुआ है, जो भी न्यूज़पेपर में, हिंदू न्यूज़पेपर में वॉट एवर न्यूज, important news that has come in the Hindu newspaper, we are going to discuss each and everything. To start with our conversation, हमारा जो इस मॉड्यूल में है ऑब्वियसली वो मई 2022 रहेगा, यानी 2022 का मई महीने का 31 डेज में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग कवर करेंगे, और इसी तरह पूरे पिछले एक साल का न्यूज हम लोग कवर करेंगे, ताकि किसी भी तरीके का नेशनल करंट इवेंट्स पे, नेशनल करंट अफेयर्स पे आपका कोई क्वेश्चन आए तो वो मिस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ मई 2022, और अगले 4-5 वीडियो में आपके मई 2022 में हिंदू नेशनल न्यूज़पेपर में जो भी करंट इवेंट्स मार्क्ड है वो सारा कुछ आप कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 मई। ऑन 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे वॉज ऑब्जर्व्ड। अब देखिए, 1 मई एवरी ईयर, हर एक साल जो है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको हम लोग इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं, इसको हम लोग लेबर डे भी कहते हैं, इसको हम लोग मे डे भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 1 मई every year. It is also known as International Workers' Day. It is also known as Labor Day, and in some countries it is also known as May Day. Now, what is the genesis of this Labor Day? It is a celebration of the laborers. It is a celebration of the working class. And where it has been promoted by, कौन इसको प्रमोट करता है? तो it has been promoted by International Labour Movement and occurs every year on 1 May or first Monday in May. Now, coming to the later part, हम लोग यदि इसका आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि in some countries like United States, Canada, Labor Day is celebrated on first Monday of September. हालांकि 1 और इनफैक्ट कभी कभी कहीं कहीं किसी देश में फर्स्ट मंडे इन मे is celebrated as a May Day. In fact, there are public holidays in most cases. But there are certain countries like Canada, there are certain countries like United States where Labor Day is celebrated on first Monday of September. Is celebrated on first Monday of. चलिए, now if you are looking at the screen, ये देखिए, ये नाम देखिए, मिस्टर आरदेशीर बीके दुबश। मिस्टर आरदेशीर बीके दुबश ये कौन थे? ऑन August 13th 1973 he was designated as honorary consul of Peru, consul, diplomatic officer. So he was designated as honorary consul of Peru on August 13, 1973. Yani today you are in 2022.
So for almost half a century, he has been an honorary consul of Peru. And during his term as consul of Peru, he has witnessed 14 presidents of Peru and 15 ambassadors of Peru to India. Why is he in news? Why Mr. R. Deshir P.K. Dubash is in news? He is in news because he has received merit in the diplomatic service of Peru, Jose Grillo Paz Soldan. And who has given this award? He has been awarded by Ministry of Foreign Affairs of Peru. अब हम लोग चलते हैं, लेट्स सी व्हाट इज पेरू जोस ग्रिगोरियो पाज सोल्डन अवार्ड। हम लोग इसको देखते हैं। तो जोस ग्रिगोरियो पाज सोल्डन, इट्स अ मेरिट अवार्ड एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 2004। Who was Jose Gregorian Paz Soldan? He was a Peruvian official. He was a Peruvian officer. And he established Peruvian diplomatic service, means diplomatic relations. And he hold the office of, in fact, you can say he was Minister of Foreign Affairs on at least 3 different occasions. So this award, George Gregorio Paz Solder Award, is given to that person who has shown exemplary service, who has distinguished himself in diplomatic relations. And this is the highest award given by Ministry of Foreign Affairs of Peru. इनको पहचानिए, ये कौन है? He is Charudat Mishra. Why is he in news? Because he has received Whitley Gold Award. Mr. Charudat Mishra, he has won the Whitley Gold Award. Why? Why this award is being given? It is given for wildlife conservation. कौन सा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, किस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का ये प्रयत्न किए? तो स्नो लेपर्ड। फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, मिस्टर चारुदत्त मिश्रा, he has won the prestigious Whitley Gold Award. अब what is so great about snow leopard, or why snow leopard is in news? तो snow leopard is in news, तो थोड़ा सा स्नो लेपर्ड के बारे में जान जाइए। स्नो लेपर्ड को हम लोग पैंथेरा उनकिया कहते हैं। स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो नोन एज आउंस। स्नो लेपर्ड को हम लोग आउंस भी कहते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? यू विल फाइंड देम इन सेंट्रल एशिया, यू विल फाइंड देम इन साउथ एशिया। व्हाई इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न? हम लोग को इतनी चिंता क्यों है स्नो लेपर्ड के बारे में? क्योंकि IUCN रेड लिस्ट में, IUCN का जो रेड लिस्ट होता है, इसमें ये वुलनरेबल कैटेगरी में आए हैं, मींस दे विल बी एक्सटिंक्ट, कभी भी ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। आज जो इनका संख्या है, द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड और पैंथरा उनकिया और आउंस इज 10,000। आज ये 10,000 है, लेकिन इट इज एस्टिमेटेड कि जिस तरह से ये चलता रहा तो वी विल फाइंड दैट बाय 2040, यानी ईयर 2040, ये हम लोग को 10% और ये कम हो जाएंगे। ये पोचिंग और हैबिटेट के कारण जो है इनकी संख्या जो है कम हो रही है। आबादी बढ़ते जा रहा है तो इनका नेचुरल जो हैबिटेट है, जो प्राकृतिक आवास है, वो छीना जा रहा है इनसे। और दूसरा, शिकार के दौरान, पोचिंग के द्वारा जो है स्नो लेपर्ड का जो लाइफ जो है एक्सटेंट, ये स्पीसीज एक्सटेंट होते चला जा रहा है। अफगानिस्तान में, हिमालयस में, टिबेटन प्लेटो में, साइबेरिया में, मंगोलिया में, वेस्टर्न चाइना में आपको स्नो लेपर्ड दिखाई देंगे। चलिए, नाउ वी कम
to another important event, and that is India, Russia, and China were added to USA's Intellectual Property Protection Priority Watch. So important news is India, Russia, and China, they are added to USA's Intellectual Property Protection प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में समझिए इन नटशेल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सपोज आप पढ़ते हैं, सपोज आप मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स में कुछ अपना एक्सक्लूसिव ट्रिक निकालते हैं, तो वो ट्रिक जो है आपका अपना इन्वेंशन है। आप पढ़ते पढ़ते फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ नया आप खोज करते हैं, आप कोरोना वायरस का कोई नया जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो ये आपके मेहनत का, आपके दिमाग का, आपके इन्वेंशन का उपज है। तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, फाइनेंशियली भी, नेम वाइज भी। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअलिटी आपकी इंटेलेक्चुअलिटी से उभरा हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट। तो यूएसए इज वेरी पर्टिकुलर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। और यदि यूएसए के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वॉच लिस्ट में आएंगे, तो आप समझिए कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इज कीन ऑन improving the trade relations with that countries, and it is a good thing that United States has put India and 6 other countries including China and Russia also on its annual priority watch list. आप देखेंगे कि इंडिया, चाइना, रशिया के अलावा इस वॉच लिस्ट में आपका अर्जेंटीना है, चिली है, इंडोनेशिया है और वेनेजुएला है। And this is officially declared by the United States Trade Representative. Means कि this watch list includes those countries where United States is thinking of increasing their trade partnership या intensive trading करना चाहते हैं। So इस साल जो है यदि इंडिया, चाइना, रशिया को इंक्लूड किया गया है, तो they have also removed Saudi Arabia, Kuwait and Romania from this list. So intellectual property is a very intensive industry, and it supports more than 60 million jobs. So let's come to another event. Maharashtra cabinet approved the Maharashtra Gene Bank, a first of its kind project in India. Now let's see what is Maharashtra Gene Bank. Maharashtra Gene Bank means gene, collection of genes. Why? What is the purpose? इसका उद्देश्य क्या है? To conserve native and endangered animals. वो जीव जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं और या जिनकी संख्या बहुत कम हो, उनको संरक्षित किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए। सो इंडिजिनस एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स के कंजर्व करने के लिए बना है, क्रॉप्स के लिए बना है, मरीन एंड बायोलॉजिकल स्पीसीज। मरीन स्पीसीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे सर्व एज अ मेडिसिन। तो मरीन एंड बायोलॉजिकल स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट. In fact, it is the only gene bank in India. इससे क्या होगा कि हमारा बायोडाइवर्सिटी जो वो कंजर्व होगा। एंड किस किस थीम पे ये महाराष्ट्र जीन बैंक काम करेगी? इट विल वर्क ऑन 7 थीम्स। ये 7 थीम पे काम करेगी। मरीन, समुद्र, क्रॉप, फसल, वेटनरी, जानवरों से, पशुओं से रिलेटेड, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड बायोडाइवर्सिटी, protection and management of forests and regeneration of forests. तो these 7 areas पे ये महाराष्ट्र जीन बैंक काम करेगी ताकि हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके। तो बच्चों इसी तरह हम लोग को जनवरी 2022 से लेके हम लोग को फरवरी 2022 तक 2023 तक, सॉरी, जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक यदि हम लोग करंट अफेयर्स को सही रूप से बना ले, सही रूप से समझ ले, सही रूप से याद कर ले, तो करंट इवेंट्स, नेशनल करंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन बोथ यूपीएससी 2023 एंड बीपीएससी पीटी
that you call it as 68 BPSC PT. सो अगले 4-5 वीडियो में हम लोग पूरा मई 2022 जो हिंदू न्यूज़पेपर पे जो भी न्यूज़ जो है सरफेस किया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, सम टेक्नो साइंटिफिक discoveries, everything, some important awards, everything will be covered. Now this has its own limitations. कहने का मतलब है कि अपने आप को हम लोग सब हिंदू न्यूज़पेपर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप यदि एक न्यूज़पेपर को पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो मदद करेगा। चलिए इसके साथ ही हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।